Yes, I am. Am I audible? Yes, sir. हेलो. हाँ सर, मैंने ज्वाइन कर लिया थी, लेकिन आवाज वगैरह आ रही है मेरी नहीं. चेक करिए एक बार. हाँ सर, ऑडिबल है सर. वेलकम इन द सेशन. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर. राजेश सर. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हेलो. हेलो सर. हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया. एक बार चेक कर लीजिए. हाँ सर, यू आर ऑडिबल सर. यस सर, यू आर ऑडिबल. ऑडिबल सर. एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ. मैं ये फोन बंद कर रहा हूँ. आपने इससे चेक कर लीजिए. जस्ट एक मिनट. या एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर. ठीक है, मैं 1 मिनट में. देन व्हेनेवर. ठीक है सर. जस्ट ओके. चलिए. जस्ट ओनली 1 मिनट. Yes, sir. No issue. By that time, I will give instruction to all students. Dear students, please keep in mind that you will be you will be keep muted. You mute only when you have to ask any question. Okay. So another thing, you can put on your cameras so that whatever steps you are doing can be seen by the our Yogacharya Shri Rajesh Agarwal sir, and they can guide you. Okay. If it happens that many participants are not able to do properly, so they can guide us. So you can keep on your camera but mute your audio and unmute it only when you have to talk, and rest of the instructions will be given by our Professor Dr. Sangeeta Biradar madam. Okay, time to time. So please follow the instruction and enjoy this yoga session. Thank you, sir. Can we proceed now? Madam, just within 2-3 minutes we will start. Once the confirmation is given by our guest, we can start. Yeah, sir, I am here. Am I audible? और full screen करना है, जो भी करना है बताइए. I am ready. Okay. Yes, sir. Principal sir, आपण start करायचं का? Yeah, you can start now. Madam, please proceed. Sir, very good morning. Rajesh sir, our Yes, principal is talking. Our principal sir is talking to you. Yes, sir. Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning. Shall we start, sir? Yeah, yes, I am ready, sir. Oh. Ram sir, shuru kar. Yes, yes. Madam, please proceed. Yes, thank you, sir. With the permission of our principal, sir, we will proceed for today's program. Good morning, everyone. Respected Project Director, Mr. Vijay Khode, sir. Respected Principal of the College, Professor Dr. B.B. Wafare, sir. Our today's guest, Yogacharya Shri Rajesh Agarwal ji, sir. Vice Principals of the College, Professor Akshata Kulkarni and Dr. Manasi Atitkar, Madam. Head of various departments, my colleagues and dear students. I, Dr. Sangeeta Biradar, Assistant Professor in Statistics, take this opportunity to welcome you all on behalf of NSS Unit, Student Development Cell and Sport Department of MIT Arts, Commerce and Science College, Alanti, on the occasion of 7th International Yoga Day. Friends, it is rightly said by someone, yoga is the gateway of happiness that body needs in daily life. We at our college celebrate this International Yoga Day with the aim to educate our students about the physical, mental, and spiritual benefits of practicing yoga. Also, to spread awareness about the importance and effect of yoga on the health of the people. Friends, you know that the International Yoga Day has been celebrated every year on June 21 since 2015. June 21 is the longest day of the year in Northern Hemisphere and has special significance in many parts of the world. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, suggested
to celebrate this day as Yoga Day all over the world in his speech at the United Nations General Assembly on 27th September 2014. Every year, a new theme is selected for this special day, and this year's theme is Yoga for Well-being. Particularly in today's situation of pandemic, yoga ensures a balance of mind, body, and soul. According to the United Nations, yoga can help with COVID-19 anxiety. It is also playing a significant role in the psychosocial care and rehabilitation of COVID patients in quarantine and isolation. It's a great pleasure for me to introduce our today's guest, Yogacharya Rajesh Agarwalji, sir, who is certified yoga consultant, naturopathist, Reiki master, laughter therapist, acupressurist, and motivational speaker. Sir has completed his master's in physics and chemistry. He has also completed diploma in naturopathy and yoga science, as well as acupressure therapy. Sir has completed his master diploma in yoga, in acupressure therapy, as well as master diploma in alternate therapy. Sir is certified yoga teacher from Patanjali Yogapith, Haridwar. He is regularly deliver talks on All India Radio since 2004 on the subjects like yoga and health, laughter therapy and health, etc. Sir has conducted more than 2,000 yoga sessions in reputed government bodies, at various colleges, in NSS and NCC camps, in private clubs and institutions. Sir has also conducted yoga sessions on different news channels. He has treated various ailments through yoga, naturopathy and laughter therapy, and through acupressure and Reiki. We all are very fortunate to have such an eminent personality with us who is going to conduct a yoga session and also talk about importance of yoga in our life. I once again welcome our today's guest, Yogacharya Rajesh Agarwalji sir. Now I request Dr. Mangesh Bhopale sir to virtually felicitate him. Thank Madam, you, sir. Yes, this is the felicitation, virtual. You can proceed now. So now I request our today's guest to start with his today's session. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Voice is clear? Yes, sir. It is clear. Thank you. MIT Arts College, Commerce and Science College के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेस्पेक्टेड मिस्टर विजय खोडे सर, प्रिंसिपल डॉक्टर बीबी फारे सर, वाइस प्रिंसिपल्स डॉक्टर मानसी अतिकर, प्रोफेसर चंद्रा कुलकर्णी, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर श्रीराम करगांवकर सर, और सारे प्रेजेंट यहाँ पर सारे हमारे कॉलेज के पदाधिकारी, स्टूडेंट्स, और ओवरऑल हमारे जनरल मैनेजर मेंटेनेंस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पाइपलाइन डिवीजन श्री अशोक करगांवकर सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं अपने आप को आपके बीच में पाकर के बहुत गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आज आपके बीच में आकर के 1 घंटे के लिए योग और हास्य योग पर बात करने का मौका मिला है. तो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एज ए फैकल्टी फॉर this 7th International Yoga Day celebration. So we will start protocol. In between we will practice laughter yoga and some other things also. So we will practice for next 1 hour. Thank you. May I start? चलिए. मैम ये मेरा हाईलाइट इसमें हो पाएगा क्या? तो स्क्रीन छोटा दिख रहा है मेरे को कि हाउ इट इज पॉसिबल. मैं फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहा हूँ. जैसे अशोक करगांव सर का बड़ा दिख रहा है और डॉक्टर बाला साहब जी का थोड़ा स्क्रीन पर बड़ा दिख रहा है, तो क्या ये दिख पाएगा? तो आई कैन have idea कि मेरा सुंदर दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir.
श्री राम सर। हाँ अगर हो सकता है Yes. आप बात कर लीजिएगा। नाउ आई विल स्टार्ट। सर वो जो स्क्रीन पे जब क्लिक करोगे ना तो 3 डॉट्स मिलेंगे बीच में। हाँ है ना। यस हाँ तो वहां पे क्लिक कीजिए ठीक है। और वहां पे जो है ना कि एंटर फुल स्क्रीन या फिर वहां पे गैलरी में ऑप्शन है तो वहां से चूज कर लीजिए सर। यहाँ पर एक है पुट मी ऑन होल्ड, डायल पैड, बैकग्राउंड इफेक्ट, टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। अच्छा एक ऑप्शन ये भी। अच्छा जस्ट अ मिनट है सर। ये इसमें होस्ट को होस्ट का कुछ इशू होगा क्योंकि आप लोग होस्ट को होस्ट होंगे तो आप कर सकते हैं, मेरे पास शायद ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा आई एम ट्राइंग दैट जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है आप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है ना, मैं खुद को पूरा देख पाऊंगा तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा प्रैक्टिस कराने में, इफ पॉसिबल, अदरवाइज तो कुछ चलेगा। ओके सर वी कैन प्रोसीड सर। अभी फिलहाल तो ये ऑप्शन है। तो वो आप देख लीजिए। आई विल स्टार्ट। चलिए Yes, तो sir. नमस्कार मुद्रा में ले आते हैं। वेद की प्रार्थना है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल पर जो हम सबको बोलनी है। आपको माइक म्यूट रखते हुए अपने स्थान पर ही रिपीट करना है। मैं बीच में पॉज दूंगा सो दैट यू कैन, अगर किसी का माइक म्यूट है तो वो बोल सकते हैं मेरी बात। ओम संगच्छध्वम तं वदध्वम तं वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आहिस्ता से आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप में कोई सीनियर सिटीजन है तो वो बैठकर कर सकते हैं कुछ अभ्यासों को जो हम लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। अभी गर्दन का करेंगे, फिर कंधे का करेंगे, फिर कमर का करेंगे। तो गर्दन और कंधे की कुर्सी पर बैठकर भी किए जा सकते हैं या जमीन पर बैठकर भी किया जा सकते हैं। तो आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ बाई साइड ऑफ द बॉडी शरीर के बगल में रखते हैं और सर्वाइकल पेन है तो गर्दन को आगे ना झुकाएं। और मेरा व्यू अगर कहीं गड़बड़ होता है तो यू कैन स्पीक मी है, क्योंकि मैं खुद को देख नहीं पा रहा हूँ इसमें, स्क्रीन बहुत छोटा है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल अपवर्ड्स एंड एक्सहेल डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट गर्दन को दाएं झुकाएंगे, राइट हैंड साइड। सांस लेंगे पहले, छोड़ते हुए राइट हैंड साइड, लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड, छोड़ते हुए सेंटर, राइट हैंड साइड, सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर। Once more. रिलैक्स, रेस्ट। बीच में थोड़ा रेस्ट करना है। तो ये दूसरा अभ्यास हमने किया गर्दन का। तीसरे अभ्यास में गर्दन को रोटेट करना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। इनहेल एंड एक्सहेल, राइट हैंड साइड, घुटने कंधे की सीध में। While inhaling, come to the center. While exhaling, go to the left hand side. Inhale, center. We'll repeat it for 2 more times. Center, left hand side and center. Relax, rest. We have to take rest between 2 yoga postures. Now, fourth and final exercise of our neck rotation. Exhale, shift to the inhale, right hand side, rotate it clockwise. 1, 3, 2. Once more, 3. Now, 1, 2, and 3. Relax. Eyes closed. हाथ बाई साइड ऑफ बॉडी। अगर आपको गर्दन में कुछ दर्द हो रहा हो, कुछ वर्टिगो जैसा लग रहा हो, तो आप गर्दन की मालिश कर सकते हैं। हमेशा हमको ध्यान रखना है, हमको we have to be happy, we have to be easy, we have to enjoy
सजा है सजा नहीं है, आनंद के साथ करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभ्यास शोल्डर के लिए। शोल्डर के दो अभ्यास है, दोनों हाथ बाई साइड ऑफ द बॉडी, हथेलियां जमीन साइड में, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, हाथ कान के बराबर ऊपर जाएंगे, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से इनहेल एंड 3 टाइम्स। इनहेल एंड एक्सहेल। ये 3 बार हमने किया। नेक्स्ट शोल्डर के लिए, शोल्डर रोटेशन, सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर उठाइए, हाथों को कंधों तक मोड़िए, कोहनियां और यहां पर रख लीजिए। सांस छोड़ते हुए कोहनियां सामने मिलाइए और सांस लेते हुए ऊपर। 1 2 3। नाउ रिवर्स। 1 2 3। रिलैक्स। हाथ बाई साइड ऑफ बॉडी, शरीर के पास में हाथों को ले आइए। तो दूसरा जॉइंट कंधों का, 4 अभ्यास गर्दन के लिए, 2 अभ्यास कंधों के लिए, 1 अभ्यास कमर के लिए। कटी विकासक क्रिया। पैरों को थोड़ा अलग कर लीजिए, दोनों हाथ सामने, हथेली एक दूसरे की तरफ, सांस भरेंगे छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे और रोटेट करेंगे। सांस नहीं करना है। सांस लेते हुए बीच में, फीमेल्स को पीरियड के टाइम पर यह अभ्यास नहीं करना है। दूसरी ओर, come to the center, repeat it for 2 more times, left hand side and right hand side. Center. It is very good exercise, very good asana for our spine. Center. Other side. Center. Other side. Center. वापस। ठीक से देख पा रहे हैं आप सब लोग मुझे? कोई भी एक जना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट फॉर घुटनों के लिए इस प्रकार से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, छोड़ते हुए कुर्सी बनाकर बैठेंगे, इमेजिनरी चेयर। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिपीट इट फॉर 3 टाइम्स। ऊपर और नीचे। रिलैक्स। ये 4 लूजनिंग एक्सरसाइज, हिंदी में शिथिलीकरण अभ्यास, एज पर प्रोटोकॉल वी हैव performed. Now we will proceed for asanas. 5 asanas while in standing posture: ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन। So first one is ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए सामने, पैरों को नजदीक रखिए, 2 से 3 फीट का, 2 से 3 इंच का फासला। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों तक उठाएंगे, हथेलियों को बाहर कर देंगे। बाहर की तरफ करने के बाद फिर सांस और लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे आकाश की तरफ और एड़ियां जमीन से उठा लेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन है कोई यहाँ पर, तो एज पर योर कैपेसिटी करेंगे, और जो खड़े नहीं हो सकते वो बैठे बैठे भी ताड़ासन को कर सकते हैं। आइए, सांस लेते हुए शोल्डर लेवल पर और फिर हथेलियों को बाहर और ऊपर ले जाएंगे। तो हाथों से कान बंद करेंगे, सामने देखेंगे, गेज करेंगे और 10 सेकंड रुकेंगे। फील लाइक हेड का पोस्चर, कमर से ऊपर वाला भाग ऊपर खींचेगा। दिस इज वेरी गुड पोस्चर टू इंक्रीज द हाइट ऑफ टीनेजर्स। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अप टू अ सर्टेन एज वी कैन इंक्रीज आवर हाइट, बट आफ्टर सम टाइम इट वर्क्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी इफेक्टिव फॉर कॉन्स्टिपेशन, वेरी इफेक्टिव फॉर आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत पर इसका इफेक्ट आता है। और फिर धीरे से वापस आएंगे, कंधे की सीध में हाथों को लाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस बार ताड़ासन। ताड़ एक पेड़ होता है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, उससे इस आसन को लिया गया है। जाएंगे, सामान्य सांस का श्वास लेते हैं। सहज होने के बाद we will proceed for next आसन, that is वृक्षासन, ट्री पोस्चर। जिस प्रकार
प्रकार से ट्री जमीन में एक स्टेम से खड़ा रहता है, ऐसे एक पैर से हमारा शरीर खड़ा रहेगा। आंखों से हम बैलेंस कराएंगे। डू विद अवेयरनेस, डू विद इजीनेस, सहज होकर करना है। राइट लेग को इस प्रकार से उठाएंगे। अगर आप सीनियर हैं तो आपको पैर उठाने की आवश्यकता नहीं है, एड़ी आपकी पेरिनियम को टच करेगी, पंजा जमीन की ओर रहेगा। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथ बाई साइड अप टू द हाइट ऑफ आवर शोल्डर, ऊपर की तरफ करेंगे हथेलियों को और हाथों से ऊपर आकाश की ओर नमस्ते करेंगे। खींच के रखेंगे। ये ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको ध्यान करना है वो इस आसन को करेंगे तो फिर ध्यान अच्छे से लगने लगेगा। या जो ध्यान करते हैं उनका ये आसन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो 10 सेकंड तक रुकना और धीरे धीरे वापस लाना कंधे की सीध में, हथेलियां नीचे करना, हाथ वापस लाना। रिपीट फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। लेफ्ट साइड से पैर को मोड़ते हैं, इस प्रकार से रखते हैं, सांस लेते हुए कंधों की सीध में ऊपर की तरफ कर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं नमस्कार मुद्रा में और रुकते हैं, मुस्कुराते रहेंगे। आंखें खुली रखेंगे। जिनका बहुत ज्यादा अभ्यास है वो केवल आंखें बंद कर सकते हैं, बाकी लोग इसको सहजता से करते हैं। और धीरे धीरे हाथों को वापस लाना। दो अभ्यास खड़े होकर करने वाले आसन, ताड़ासन, रिलैक्स। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। जब भी लगे सांस तेज हो रही है, नासिका से सांस लो, मुंह से निकालो। लाइक we will proceed for third asana, पाद हस्तासन। पैर और हाथों का स्पर्श होगा। हस्त कहते हैं हाथ, पैर कहते हैं पैर। तो हाथों से पैर को स्पर्श करना। प्रिकॉशन इज ओनली वन कि आपको कमर दर्द है तो आगे न झुकना। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। वीडियो ऑन रखें। अधिकांश लोगों के वीडियो ऑफ है। तो ये इंटरनेशनल योग डे में योग केवल देखने की चीज नहीं, ये करने की है। तो आप करिए इसको जितना है। अगर आप चेयर पर बैठे तो वहां भी कुछ हिलाते रहिए हाथ पैरों को। घुटने की तरफ देखना, कमर से झुकना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ना, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है ये। इससे हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, आनंद का भाव रखना। सांस लेते हुए वापस आ जाना। मुस्कुराते हुए साइड में हाथों को वापस ले आना। तीसरा अभ्यास, रेस्ट करना। Before proceeding for next asana, that is Ardha Chakrasana, half circle posture, half wheel posture भी कह सकते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार से साइड में रखने हैं। हर्निया है तो नहीं करना है, अल्सर है तो नहीं करना है, वर्टिगो है तो नहीं करना है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो एज पर योर कैपेसिटी करना। पैर नजदीक रहेंगे, इस प्रकार से करते हुए पीछे की तरफ जाना। होल्ड करना 10 सेकंड। रिलैक्स। आनंद के साथ रहना, मुस्कुराते रहना। 4 आसन हमने किए। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड फॉर फाइनल training posture, that is Trikonasana. So we will understand this first, then we will practice it. So we will make a distance between our legs at least for 3 feet. कम से कम 3 फीट का फासला रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर स्ट्रेंथ पर उठाएंगे, शोल्डर लेवल पर। राइट पंजे को राइट साइड घुमा देंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में झुकेंगे। हाथों से 180 डिग्री मेंटेन करके रखेंगे। राइट हैंड राइट लेग के पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और ऊपर वाले हाथ की हथेली की तरफ देखेंगे, मिडिल फिंगर की तरफ देखेंगे। सांस को सांस लेते रहेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आईज ओपन एंड फील द इफेक्ट ऑन आवर नेक। गर्दन पर आ रहे खिंचाव को और बदलाव को महसूस करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए बीच में आते हैं, पैर को सीधा करते हैं। अभी लेफ्ट पैर को घुमाते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाते हैं, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखते हैं। ट्रायंगल जैसा बनता है, इसलिए इसको ट्रायंगल पोस्चर भी कहते हैं, त्रिकोणासन भी कहते हैं। और साइड में स्ट्रेच होता है, तो साइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। शरीर से स्ट्रॉन्ग बनता है और खिंचाव आ रहा होगा आपको साइड्स में। त्रिकोणासन। आराम से सांस लेते हुए बीच में आ जाते हैं, पैर को सीधा कर लेते हैं, हाथों को वापस और पैर वापस। नाउ वी विल डू सिटिंग पोस्चर्स। बैठने वाले अभ्यास करते हैं। तो दंडासन की स्थिति में बैठते हैं इस प्रकार से।
जब दोनों पैर एकदम डंडे के समान है, हाथ भी डंडे के समान है, तो ये दंडासन कहलाता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है रेस्ट करने के लिए। जब हम बैठकर अभ्यास करते हैं तो इसमें हमको बैठना चाहिए। नेक्स्ट जो सिटिंग पोस्चर है उसको करने से पहले समझ लेते हैं। नेक्स्ट पोस्चर है भद्रासन, जेंटलमैन पोस्चर। तो इसमें हमारी पर्सनालिटी जेंटलमैन जैसी बनती है, हम सभ्य बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर स्थिरता आती है और बहुत सारी बीमारियां हमारी से दूर होती है। जेंट्स की प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज के यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है, पीरियड्स के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है उनसे दूर होता है, वो सब इससे दूर होते हैं। तो उसके लिए हम पैरों को मोड़ेंगे, बटरफ्लाई जैसी पोजीशन बनाएंगे, दोनों पैरों के तलवों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ेंगे और घुटनों को जमीन की ओर झुकने देंगे। पूरा प्रेशर जमीन की तरफ देंगे घुटनों का। और जो नहीं कर सकते वो इस प्रकार से बटरफ्लाई तितली आसन भी कर सकते हैं। मुस्कुराते रहेंगे, आनंद का भाव, नो स्ट्रेस एट ऑल। 10 सेकंड रुकना, आनंद में रहना, प्रसन्नता में रहना, मुस्कुराते रहना। चलिए सेंटर में लाते हैं, पैर को सीधा खोल लेते हैं। पहला अभ्यास बैठकर करने वाला हमने किया भद्रासन। दूसरा अभ्यास है पुष्पासन, कैमल पोस्चर, हाफ कैमल पोस्चर एंड कैमल पोस्चर। उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा सबसे पहले वज्रासन। वज्रासन में जाना है, पहले राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट लेग को मोड़िए और इस प्रकार से बैठ जाइए, घुटने दोनों मिले रहेंगे। ये वज्रासन। दिस इज द ओनली पोस्चर which can be practiced after our meal or our meal, breakfast, lunch, dinner। आप कभी भी खाना खाने के बाद इसमें बैठ सकते हैं। जब हम इसमें बैठते हैं तो हमारे नीचे का पोर्शन लॉक हो जाता है। खाना खाने के बाद हमारे शरीर में जो भोजन जाता है, जो फूड जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वज्रासन में बैठने से जो एनर्जी नीचे की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन रहता था वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा मिलने से हमारा फूड अच्छे से पच पाता है और हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है, वज्र के समान बनता है। ये वज्रासन है। इसमें हमको करना है पहले हाफ कैमल पोस्चर, देन कैमल पोस्चर। जिनको हर्निया है उनको नहीं करना है, जिनको मैंने प्रिकॉशन बताया पीछे झुकने वाला, तो आपको नहीं करना है। आराम से करना, एज पर योर कैपेसिटी एंड एज पर योर कन्वीनियंस। ऑलवेज रिमेंबर टैगलाइन, योग मजा है, सजा नहीं। नो पनिशमेंट, सहजता से आराम से करना है। घुटनों पर खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, दोनों हाथों को हिप्स पे रखेंगे इस प्रकार से, सांस भरेंगे, पैर दोनों पीछे हैं, कलवे आकाश की तरफ है, सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे और होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाना। कैमल पोस्चर में घुटनों को थोड़ा अलग कर लेंगे, सांस भरते हुए राइट हैंड राइट एड़ी पर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एड़ी पर, और बिल्कुल कैमल जैसी उनकी गर्दन जैसी होती है, ऐसे होल्ड करेंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। धीरे से वापस आएंगे, एक हाथ वापस, दूसरा हाथ वापस, वज्रासन में आ जाते हैं। रिलैक्स, शवासन, वज्रासन, सामान्य श्वास। थोड़ा रेस्ट करते हैं ना, श्वास प्रश्वास को देखते हैं, दृष्टा बंद करके देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए वेटिंग में है, गेस्ट आर वेटिंग टू ज्वाइन। अच्छा, मीटिंग फुल हो गई लगता है। नेक्स्ट अभ्यास हमको करना है शशकासन या शशांकासन। प्रोटोकॉल में शशांकासन के नाम से, शशांक कहते हैं चंद्रमा को और शशक कहते हैं खरगोश को, तो रैबिट पोस्चर भी बोलते हैं इसको और शशांकासन भी बोलते हैं। इसमें प्रोटोकॉल में घुटनों में थोड़ा फासला कर लेना है। नॉर्मली तो हम लोग सीधा ऊपर हाथ उठाकर इस प्रकार से करते हैं, नीचे जाते हैं, लेकिन एज पर प्रोटोकॉल ये घुटनों में थोड़ा फासला कर लेते हैं। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो जबरदस्ती मत कीजिएगा, सहजता से कीजिएगा, आनंद के साथ कीजिएगा और मुस्कुराते रहिएगा ना। हैप्पीनेस शुड बी अनकंडीशनल। अगर हम कंडीशन में रहते हैं तो फिर हम मुस्कुरा नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन खत्म, मुस्कुराहट खत्म। तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाते हैं, ऐसे खिसकाते चले जाएंगे और सीना हमारा जमीन पर टिक जाएगा और ठुड्डी जमीन पर टिक जाएगी, ऐसे खरगोश जैसे। कम से कम 10 सेकंड इसमें और लोग मुस्कुराते रहना और शरीर में आ रहे बदलाव को महसूस करना। धीरे धीरे सांस लेते रहना और छोड़ना।
इसमें अगर स्पीकर व्यू हो जाता हो जैसे जूम में होता है तो आप इसको स्पीकर व्यू पर एक बार करके देख लें सेटिंग को, मीटिंग सेटिंग को. इट विल बी वेरी इजी फॉर मी. स्लोली वापस लाना और वज्रासन में वापस आ जाना. रेस्ट करना, आंखें बंद कर लेना, मुस्कुराते रहना और शरीर में जो चेंज आया है उसको अनुभव करते रहना. देखो योग केवल शरीर की क्रिया नहीं है और योग केवल आसन भी नहीं है. आसन तो योग का एक पार्ट है, अष्टांग योग का एक पार्ट है आसन. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. नेक्स्ट अभ्यास हम करते हैं उत्तान मंडूकासन. उत्तान कहते हैं उठी पोजीशन और मंडू कहते हैं फ्रॉग या मेढक. तो मेढक की जो उठी हुई स्थिति है उसका हमको अभ्यास करना है. उसके लिए घुटनों में कम से कम 1.5 फीट का फासला करना है, यही वज्रासन में से ही. और दोनों हाथों को साइड से उठाते हैं सांस लेते हुए. राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पीछे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे और आपकी कोहनी एल्बो आकाश की तरफ, छत की तरफ. और फील द पोस्चर. आंखें बंद कर लेंगे और शरीर में आ रहे बदलाव को अनुभव करेंगे. मुस्कुराते रहेंगे. बी हैप्पी, बी हेल्दी. आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हेल्दी, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. अपने आप को मजबूत महसूस करना. योग करने वाले शरीर वाले लोगों का शरीर तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, मन भी मजबूत होता है. वापस लाना, इंटरचेंज करना बोथ साइड. हाथ चेंज होते ही लंग्स पर इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है. तो फॉर कोविड-19 दिस इज वेरी गुड आसन, उत्तान मंडूकासन. इस प्रकार से श्वास प्रश्वास करते रहना, मुस्कुराते रहना. तो हमने बैठकर करने में सबसे पहले भद्रासन किया, फिर उत्तानासन किया, फिर शशकासन किया और उत्तान मंडूकासन किया और लास्ट बैठकर करने वाला आसन है वक्रासन. दोनों पैरों को मिला लेते हैं और वज्रासन से बाहर आ जाते हैं. 1 बाय 1 पैर को वापस लाना, मुस्कुराते रहना, आनंद भाव मेंटेन करके रखना. बी विद योरसेल्फ, बी विद गॉड. खुद के साथ रहना, खुदा के साथ रहना. योग का मतलब ही है जुड़ना. किससे जुड़ना? उससे जुड़ना जिससे हमारा कभी वियोग न हो. योग उसके साथ करना जिसके साथ हम जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे. तो हमारा शरीर है पंचभौतिक शरीर, ये धरती माँ से मिला हमको, क्षितिज जल पावक गगन सभी. तो इसका योग संसार के साथ और इसके अंदर जो आत्मा है उसका योग परमात्मा के साथ. तो योग चित्तवृत्ति निरोधः तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम. जब हमें अपना आत्मबोध होने लगता है, स्वरूप का बोध होने लगता है, तो उस समय हम परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं. नहीं होता वही वास्तविक योग है और जिसका वियोग हो जाए वो योग नहीं. तो वक्रासन करते हैं, दोनों पैरों को सामने इस प्रकार से लाते हैं. इसको मरीची आसन भी कहते हैं. ये ऋषि हुए मरीची, उनके नाम के ऊपर है. ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है. राइट लेग को इस प्रकार से खड़ा कर लेते हैं, राइट हैंड बॉडी के पास, शरीर के पास रहेगा. अपोजिट हैंड को बाहर से उठाते हैं, यहाँ से टकना पकड़ते हैं और पीछे देखते हैं. ट्विस्ट, फील द इफेक्ट ऑफ पोस्चर. शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करते हैं. शोल्डर सीधे रहेंगे, सीना फैला रहेगा, ऐसे सिकोड़ना नहीं है सिर्फ 20 पे. और शरीर में जो चेंज आ रहा है, देखिए पेट ट्विस्ट हो रहा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है. स्पाइन ट्विस्ट होती है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है. पैंक्रियाज जो लिवर के लिए बहुत अच्छा है. हाथों को इस प्रकार से रखना और मुस्कुराते रहना. धीरे से वापस आ जाना. 10 सेकंड करने के बाद नाउ चेंज. अगर पैर लेफ्ट लेग को खड़ा करना, राइट हैंड को बाहर से लाना, टकना पकड़ना और पीछे देखना. मुस्कुराते रहना, आनंद में रहना, प्रसन्नता में रहना और जीवन में रहना. वापस. तो ये बैठ कर करने वाले 5 अभ्यास. 3 अभ्यास पेट के बल लेट कर करने वाले. ठीक है, तो मकरासन में लेट जाइए, पेट के बल सहज हो जाइए और कोशिश कीजिए वीडियो ऑन रहे. सब लोगों के, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों के वीडियो ऑफ है. तो योगाभ्यास करने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है, उपदेश नहीं है. ये फंक्शनल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है. हम लोग जो सत्र है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का, ये एक सिंबॉलिक है. आज हमें सीखना है, पूरे साल हमको करना है. चलिए टेबल लेट जाइए. Students, you can put on your cameras. इस प्रकार से ये मकरासन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड क्रोकोडाइल पोस्चर. जैसे क्रोकोडाइल पानी में पड़ा रहता है, घड़ियाल पड़ा रहता है, ऐसे ही हमारा शरीर धरती माँ की गोदी में पड़ा हुआ है. शरीर को लूज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे. पैरों में कम से कम 1.5 फीट का फासला रखेंगे, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ. आंखें बंद और ध्यान.
सबसे पहले इसमें भुजंगासन करते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए तलवे आकाश की तरफ, दोनों हथेलियां इस प्रकार से सामने रखेंगे, कोहनियां जमीन से लगी हुई शरीर के पास। तो सरल भुजंगासन करते हैं पहले, सिंपल कोबरा पोज। सांस लेते हुए जैसे सांप अपना फन उठाता है ऐसे हम उठाएंगे। होल्ड, सामान्य सांस लेते रहना और निश्वास। और धीरे से वापस अब इसमें पूर्ण भुजंगासन, दोनों हाथों को कंधों के नीचे ले आना, कोहनी नीचे से उठ जाएगी, आकाश की तरफ हो जाएगी और हाथ शरीर के पास रखेंगे। सांस लेते हुए आगे से पूरा उठना है, ये बंद करके और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है, आराम आराम से करना है, मुस्कुराते मुस्कुराते 10 सेकंड तक रुकना। और धीरे से वापस आना। हरनिया में पीछे नहीं जाना होता है, कमर दर्द में आगे नहीं झुकना है, ये प्रिकॉशन है। इसको पीरियड के टाइम पर ज्यादा कठिन अभ्यास नहीं करना है, प्रेगनेंसी में कोई आसन नहीं करना है, हल्के हल्के प्राणायाम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति भी। तो दी जाता है प्रिकॉशंस। सुबह खाली पेट करना है। नहाने के तुरंत बाद योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन योगाभ्यास के बाद 20 से 30 मिनट बाद आपको नहाना और खाना है, तुरंत नहीं होना। रिलैक्स, दोनों पैरों को मिला लेना। शलभासन, दोनों पैरों को थाइस के नीचे ले जाना इस प्रकार से, हथेली ऊपर की तरफ रहेगी, चिन टू द हार्ट। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना। बैक पेन है तो एक पैर उठाना, जल्दी मत करना, आराम से करना। होल्ड, उठने से पैर सीधे रहेंगे, जितना होगा उतना करेंगे। चिन टू द हार्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड स्लोली कम। और ये मकरासन, तो 3 अभ्यास हुए पीठ पे पेट के बल लेकर करने वाले। नाउ वी विल चेंज, वी विल कम टू आवर बैक, पीठ पर आ जाते हैं और 5 आसन पीठ के बल लेकर करने वाले। आखिरी 5 आसन, देन और मुस्कुराते रहना, चेहरे पर मुस्कुराते रहना। Keep your videos on so that somebody can watch you, आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले शवासन, शवासन में शरीर को डेड बॉडी की तरह धरती पर डाल देना, पड़ा हुआ है, नो एक्टिविटी एट ऑल, कोई शरीर में, शरीर एकदम शांत है, शिथिल है, सहज है और विश्राम। चलिए नेक्स्ट, दोनों पैरों को मोड़ देते हैं इस प्रकार से, कंधरासन या सेतुबंधासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लेते हैं। बहुत सरल सरल आसन है, कुछ भी इतना कठिन नहीं है इसमें। ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, यूट्रस के लिए, जेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए, पेनफुल पीरियड्स में बहुत लाभ करता है ये, और नाभि को भी बैलेंस करता है। सांस करते हुए बीच में से उठना, सेतु बनाना, ब्रिज बनाना, कंधों पर आना, इसलिए इसका नाम कंधरासन। सहज होना, रहना, आनंद में रहना। बहुत अच्छा। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आना, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़। कंधरासन हमने किया पहला अभ्यास। रेस्ट जरूर करना है। दूसरे अभ्यास के रूप में हमको उत्तान पादासन करना है, दोनों पैरों को मिलाना, दोनों हाथ बाई साइड ऑफ द बॉडी, सांस करते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना। बैक पेन है तो एक पैर उठाना और रुकना, शरीर में आ रहे बदलाव को महसूस करना। टेबल के नीचे आपको एक वाइब्रेशन फील हो रही होगी, तो अनुभव करते हैं।
धीरे धीरे वापस रिलैक्स, शाबाश। श्वास को देखना, साक्षी भाव। ये जो शवासन है इसको बीच बीच में हमको करना है, किन्हीं भी दो आसनों के बीच में हम इसको कर सकते हैं, बफर का काम करता है। तो इसमें 5 सेकंड हो जाते हैं। अगला अभ्यास अर्धहलासन, आधा हल जैसा बन जाएगा, हाफ ये जो है हल जैसा बनेगा। वैसे श्वास करते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना, ये घुटनों से सीधे रखना, कितना होता है इतना करना, कितना होता है, ठीक है, सीधे रखना और हाथ साइड में रहे और श्वास पर श्वास लेते रहना 30 सेकंड। नाभि और उसके ऊपर लेवल एंड अपर पोर्शन इज बीइंग अफेक्टेड बाय दिस पोस्चर। दिस इज अर्धहलासना एंड दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर आवर स्टमक एंड ऑल द ailments which are related to our digestive system, whether it is constipation, whether it is gastric trouble, whether it is indigestion, and it also reduces the fat on our stomach. शरीर में बढ़े हुए वेट को, मोटापे को ये रिड्यूस करता है। दिस इज वंडरफुल पोस्चर एंड स्लोली वी विल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन व्हिच इज शवासना एंड इनहेल एंड फील द इफेक्ट ऑफ पोस्चर। वंडरफुल सेशन by International Yoga Day protocol by the Government of India. They have prepared International Yoga Day protocol by 15 top institutions of India in which Patanjali Yoga, Gayatri Parivar, केवल धाम लोनावाला, शांति कुंज हरिद्वार और बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, so many top S Vyasa Bangalore. They have prepared this protocol and this is wonderful protocol. If we practice it on daily basis, so we will get a lot of benefits. Today we are doing it symbolically. So next practice, we will practice Pavan Muktasana. दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं श्वास रखते हुए, मोड़ करके घुटने को सीने पर रखते हैं, दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हैं एंड एक्सहेल करते हुए चिन टू द नीज होल्ड। श्वास पर श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना, शरीर में आगे बदलाव को महसूस करना। We can do rocking and rolling also if we can. Like that, we will be benefited by spinal massage, just like that. This is wonderful. And Shavasana, final posture. Final stage of our body is Shavasana. In this protocol also and in real life also, we all have to go to our God and in और पास जाने के लिए शव डेड बॉडी हमको एक दिन बनना ही है। तो हमारा जो जीवात्मा है, हमारे अंदर जो चैतन्यता है, उसको चैतन्य रखना, उसको जागृत रखना, शरीर को स्वस्थ रखना और मन को भी स्वस्थ। योग करने से शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है। समझ लीजिए योग कोई आसन नहीं, योग कोई आसन नहीं, योग कोई प्राणायाम नहीं, ये तो उसके छोटे छोटे पार्ट है। योग तो साधना पद्धति है, योग तो चिकित्सा पद्धति है और योग तो जीवन पद्धति है। योगियों के लिए योग साधना पद्धति, बीमारों के लिए योग चिकित्सा पद्धति और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योग जीवन पद्धति। योग जीने की कला है। बच्चा पैदा होता है, उसके कुछ दिन बाद जब वो लेटा रहता है, अपने पैरों को मोड़ करके खुद अपने मुंह में लगा लेता है, वो भी एक आसन है। जब वो लेटता है, इस प्रकार से लेटने की उसकी पोजीशन अलग अलग होती है, सारे आसन नहीं है एक तरह से। तो हमारा जीवन योग से जुड़ा हुआ है, योग में है। बच्चा मुस्कुराता है, समझता नहीं लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, तो हास्य कर रहा होता है। तो ये हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ, योग से भरा हुआ और सात्विकता से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ जीवन को जीना है हमको। परमात्मा ने बड़ी कृपा की, हमने मनुष्य बनाया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। माई का बर्थडे लीजिए और हाथों का सहारा लेकर के धीरे से बैठ जाए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, सारे ग्रंथ कहते हैं ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अनेक जन्मों के परिणाम स्वरूप हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। हमको इसी को ऐसे ही नहीं होना है, हमें इसको सम्मान देना है। तो इस प्रकार से हमने आसनों के अभ्यास किए। नाउ वी विल प्रोसीड टू प्राणायाम। प्राणायाम के लिए हमको बैठना। सबसे पहले है कपालभाति। प्रोटोकॉल में क्रिया के नाम से दिया है, कपालभाति क्रिया। कपाल किसको कहते हैं? इसको
पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है हमारे शरीर की, उनके अंदर जो शाइनिंग आती है तो हमारे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, कपाल पर दिखती है। तो जब कपाल पर दिखती है तो इस क्रिया को करने से जब ये दिखती है तो दैट इज कॉल्ड कपालभाति क्रिया और कपालभाति प्राणायाम। मुझे हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है they go outside by 4 means only: stool, urine, sweat and breath। तो हम ब्रेथ के द्वारा कैसे शरीर को डिटॉक्स कर पाए, कैसे सफाई कर पाए, तो दिस कपालभाति क्रिया और दिस कपालभाति प्राणायाम, it is doing cleanliness of our internal body। तथा चेते प्रकाशावरण, हम क्या हैं, हम शुद्ध बुद्ध आत्मा है, शुद्ध बुद्ध हमारा शरीर है ना, और हम तो इसके ऊपर असत्ता है ना, बीमारियों का, जड़ता का, इनका एक आवरण आ जाता है। उसकी वजह से हमारा जो आत्मिक मुख्य स्वरूप है, शुभ स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो छुप जाता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो उस पर जो हमारी चेतनता, हमारी जो दिव्यता के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाता है। तथा चेते प्रकाश। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल में 30-30 के 3 सेट करने होते हैं, हम एक बार में 100 स्ट्रोक करते हैं। Although it is very popular and I think all of you or maximum of you know how to do Kapalbhati, even then I have to explain। We are, जब हम श्वास लेते हैं, there are 4 stages of breathe: inhale पूरक, रिटेंशन कुंभक, एक्सहेल बाहर छोड़ देना और बाहर रोक देना, पूरक, रेचक, कुंभक और बाह्य कुंभक। तो जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं इस प्रकार से, दिस इज एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन। But in Kapalbhati, inhalation is inactive, passive, है ना, and exhalation is active, like that। We have not to inhale; it will come automatically. Just exhale, like that। If you have any doubt, so you can type your question in chat box. You know, somebody can ask me, and I'll try to reply, like that। Smile on face, only stroke with our stomach, no change in our shoulders। You imagine जब हम कोई दीपक बुझाते ऐसे, लेकिन अगर हम नाक से बुझाएंगे तो कैसे, हर जाने वाली सांस के साथ। यू इमेजिन यहाँ पर कुछ है, हम उसको हवा मार रहे हैं ऐसे। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, नॉट प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड इज सिट इन एनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। देयर आर सो मेनी मुद्राज by which we can heal our body, mind and soul। So in this is Jnana Mudra, this is good for all। Like that, we can practice it for 15 minutes, depending upon our need and our capacity। तो जब हम लगातार सांसों को छोड़ते हैं तो एक रिदम जैसा बनता है, तो वी गेट मेडिटेटेड, ध्यानस्थ हो जाते हैं। और हंसवो खेलवो धरवो ध्यान, हंसते खेलते ध्यान, अपने साथ जुड़ जाना। कपालभाति प्राणायाम इस प्रकार हमने किया। अगला क्रिया हमने जो कपालभाति क्रिया के नाम से किया, अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधक प्राणायाम। हमारा जो शरीर है उसके अंदर 2 नोस्ट्रिल्स है, लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल। लेफ्ट nostril is cool, right nostril is hot। When we inhale our left nostril, we inhale cool, and when we exhale from right, it is hot। तो जब हम लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से निकाल देंगे, it will be अनुलोम प्राणायाम, अनुलोम। Again when we will do it, repeat it, do it opposite, then it will be विलोम, हिंदी शब्द विलोम। तो राइट से लेकर लेफ्ट से निकाल देंगे, तो this is विलोम। And total in combination of both these, it will become अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो प्राणायाम मुद्रा बनाना, अंगूठे की पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे लगा देना, और ये जो आपकी रिंग फिंगर है और स्मॉल लिटिल फिंगर है, इनको एक साथ रखना। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करना, लेफ्ट से डीप इनहेल करना, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटने पर रख लेना। कई लोग इसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इनहेल डीपली फ्रॉम आवर लेफ्ट नोस्ट्रिल and exhale from right nostril।
slowly, है ना, 1:1. This is Anulom Vilom Pranayama. Again, inhale from right nostril and exhale from left. This is one cycle. We will proceed for 5 cycles as per protocol. Slowly करना, 1:1 का ratio maintain करना. For beginners and those who are doing practice for a long period, they can maintain 1:2 ratio. Inhale slowly and exhale more slowly. At least 5 cycles, we will do it. You can do more slowly. I am doing little bit faster. Do it for next 2 or 3 cycles. Uh, 239 participants are in meeting. Wow, very nice. But maximum videos are off. This is not good signal. You should keep your videos on. You can practice around chair also when we do pranayama. We should honor our instructions of our institute. Ashok, Sri Ram Kargaonkar sir has instructed. Yes, sir. But maximum of you have kept your videos off. Yes, sir. Sir, all students are doing their this yoga. Actually, if everybody put on their camera, then there may be some internet issue. So that's why. That's why. Yes. Yes. Thank you. मुझे लगा कि जानबूझ के बंद किया. No, sir. Everyone is everyone doing it. Yes. Good. तो अभी थोड़ी देर में हम हास्यों के लिए जाएंगे. Yes. आगे वही हास्यों जरूर कराना है. तो अभी थोड़ा बनाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Few faculties and students can put on their camera. Okay. Please. तो अभी क्या ना सबका ऑफ होने से ऐसा लग रहा है कि मैं ही अकेला हूँ, बाकी कोई है ही नहीं. है ना, तो फील नहीं आएगा लैपटॉप में. तो कुछ लोगों का ऑन करना ही है. एटलीस्ट आप पर हाईलाइट कर सकते हैं 4-5 लोगों को, तो फिर अच्छे से हो पाएगा. Anyway, yes, yes, sir. First, let us complete our this package. Next pranayam is Shitli Pranayam. In Shitli Pranayam, we have to inhale from our mouth and exhale from your nostril. Remember, in pranayama or in yoga session, we have to inhale from nostril and exhale from nostril. Breathing हमको nostril से करनी है, but in exceptional cases वो protocol है. तो हमको मुंह से श्वास लेना है. हाउ टू ब्रीथ, जीभ की नाली बनाना ऐसे. बट प्रिकॉशन, पहले प्रिकॉशन समझिए. डूज आर इंपॉर्टेंट बट डोंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. जिनको सर्दी हो रही है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, उनको ये अभ्यास नहीं करना, क्योंकि इससे तुरंत ठंडक आती है. यू विल फील इमीडिएटली. और ये कुछ चीजों की मेडिसिन भी है. कभी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा हो, आप शीतली प्राणायाम करिए. आप 5 बार करके करेंगे, आपको अपना बीपी चेक कर लीजिए, तुरंत नीचे आ जाएगा. आपको बहुत गर्मी लग रही है और बहुत प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा है, उस समय आप शीतली प्राणायाम करिए, ठंडक आ जाएगी. आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहां पर न पंखा है ना एसी है, उस समय आप शीतली प्राणायाम करिए, आपको ठंडक आएगी. तो वी विल डू इट. फर्स्ट एवरीबॉडी प्लीज सी इट हाउ टू डू इट. इनहेल फ्रॉम माउथ लाइक दैट. You can hold it, है ना, if you have capacity, or otherwise you can exhale. This is one cycle. We will proceed for 3 cycles. Hi, sir. Yeah, very nice. Thank you. Last. Sir. One doubt. Yeah. Sir, ये जो आप ये जो प्राणायाम बता रहे हैं, इसमें what should be the shape of the tongue? It should be totally you. Just like a pipe, a straw. Can you watch? Yeah. Straw. कई लोगों की जीभ टाइट होती है, मुड़ती नहीं है, तो that is a different issue. लेकिन ये बिल्कुल पाइप जैसा बनेगा. Okay.
Okay. Okay. Yeah, next practice. That's not part of protocol, but we will practice because that's more beneficiary than the Shitli pranayam. That is Shitkari pranayam. We will inhale from our tongues, from our teeth. अभी हमने जीभ से श्वास लिया, अभी हम दांतों से श्वास लेंगे, सी की आवाज आएगी. That's why this is called Shitkari pranayam. We'll practice it for 3 times. First you observe, see how to practice it. Inhale from your teeth and exhale from your nose. Yeah, start. This is very good for our teeth and gums. Also, it is good for pyorrhea. Relax. So, we have practiced almost total protocol. Only Bhramari pranayam and meditation is left. So, we will go for laughter yoga. After that, we will practice Bhramari pranayam as concluding practice. Thereafter, we will take the sankalp, which is prepared by Government of India. So, we will proceed for laughter yoga. So, 2 मिनट 3 मिनट हम थोड़ा समझते हैं व्हाट इज लाफ्टर योगा, व्हाट इज हास्य योग. हास्य क्या है, हंसी क्या है, ये बड़ा अजीब सा लगता है शुरुआत में लोगों को. बोले हंसना भी कुछ है, हंसते तो हम वैसे ही हैं, लेकिन हम कितना हंसते हैं. अगर हमको हंसी आई 2 सेकंड 3 सेकंड, ये नॉर्मल हंसी है. आपको मेडिकली बेनिफिट इसमें मिलने वाले नहीं है ना. जब हम लंबी हंसी हंसते हैं, जब हम कंटिन्यूअसली हंसते हैं, जब हम गहरी हंसी हंसते हैं, तो हमारे अंदर पूरा वाइब्रेशन होता है ना. और हंसी न कॉमेडी है, हंसी न जोक है, हंसी एक्सरसाइज तो है, लेकिन एक्सरसाइज से ऊपर भी कोई चीज है और वो है योग. योग क्या करता है, हमको खुद से जोड़ता है, हंसी भी हमको जोड़ती है. एंड यू विल नाउ रियलाइज हाउ वी कैन कनेक्ट विद आवरसेल्फ, हाउ वी कैन कनेक्ट विद गॉड. सबसे पहली चीज तो ये है, हंसी केवल मनुष्य हंसता है. नोबडी कैन लाफ अदर देन ह्यूमन बीइंग. नो डंकी, नो मंकी, नो काव, नो लॉयन, नो टाइगर. किसी को देखा हंसते हुए? देखा हो तो हाथ ऊपर करके बताइए. किसी ने नहीं देखा. जो हंसता है वो मनुष्य, और जो नहीं हंसता वो पशु. तो पशु योनि से हम ऊपर हैं, हम मनुष्य योनि में, तो हंसना हमारा स्वभाव है. हंसने से मनुष्यता की पहचान है. जो व्यक्ति हंस सकता है वो पक्का मनुष्य, नो डाउट एट ऑल. तो हम हंसी की शुरुआत करते हैं. 5-7 मिनट करेंगे, टोटल 10 मिनट का टाइम हमारे पास. 5 मिनट. नमस्ते हास्य से, हाँ, नमस्ते हास्य से शुरू करेंगे. सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? ग्रीटिंग लाफ्टर, नमस्ते हास्य, और मुस्कुराना. इस प्रकार से मुस्कुराना. हम खुद को नमस्ते नहीं कर रहे हैं, खुदा को नमस्ते कर रहे हैं, परमात्मा को नमस्ते कर रहे हैं. करते ही है ना प्रेयर में, वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर टिक जाए, डट जाए. तो ईश्वर को नमस्ते करते हैं ऐसे. कुछ लोग वीडियो ऑन कर लीजिए जो स्क्रीन पर है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी. Dear teachers, please put on your cameras. Dear students, some students can put on their cameras, please. चलिए, अभी हमने परमात्मा को नमस्ते किया. परमात्मा इज सुप्रीम अथॉरिटी, उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं. लेकिन ये शरीर किसकी वजह से है? आत्मा परमात्मा की वजह से. लेकिन शरीर किसकी वजह से है? फोर फादर्स की वजह से. अगर हमारे फोर फादर्स नहीं होते तो हम नहीं होते. माता और पिता ने हमें इस दुनिया में भेजा. हमारे माता पिता हैं तो दादी बाबा नहीं है, दादी बाबा की वजह से माता पिता है, परदादी बाबा आए तो वो कहाँ है? अभी हमारे साथ नहीं है. वो जहां पर है वो बैकुंठ धाम में है. तो हम उनको नमस्ते करेंगे हंसते हंसते. और आप साइंस देखिए, जब आप दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाकर उनको नमस्ते करेंगे तो आपके लंग्स में एक्टिवेशन आएगा. इस प्रकार से समझिए और फिर करिए, है ना. पहले जानो फिर मानो. इसलिए मत मानो तो मैंने कहा है, और नहीं तो अनुभव से जानो, है ना. दूसरों के अनुभव से हमको सीखना चाहिए. अपने अनुभव से सारी चीजें सीखेंगे तो ये जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी. तो कुछ मेरा अनुभव, फिर आपका अनुभव इसके साथ जुड़ जाएगा. तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने फोर फादर्स को नमस्ते करेंगे, क्योंकि वो ऊपर है ना. इस प्रकार से हाथों को ऊपर ले जाना और पूरा मुस्कुराना. जिन्होंने हमें संसार में आने के माध्यम बने, उनको केवल श्राद्ध पक्ष में याद नहीं रखना. उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा हैं, इसलिए उनको नमस्ते करते रहना कभी कभी. और हास्य योग में मैंने आपको करा दिया. तो हमने फोर फादर्स को नमस्ते कर लिया, पहले ईश्वर को नमस्ते किया. अभी जो बाकी देव है ना, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं
देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो मुझे भजते हैं वो मुझको प्राप्त करते हैं। तो देवताओं को भी नमस्ते कर लेंगे, नहीं वो नाराज हो जाएंगे, मैंने नहीं पूछा, सीधा परमात्मा से जुड़ गए। तो राइट साइड में झुकेंगे। अब साइंस समझिए, जब आप ऐसे झुकते हैं ना, हंसते हैं, तो पेट में अंदर वाइब्रेशन होता है और ये आपका पैनक्रियास ट्विस्ट हो रहा है। अभी हमने कुछ आसन किए ना, वक्रासन, मैंने इसको इतना अच्छे से प्रोटोकॉल को पैकेज को बनाया लाफिंग का, अगर आप वास्तव में करेंगे तो आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। पूरा आपको योग का आनंद मिलेगा, बल्कि योग से ऊपर की चीजों में आप पहुंच पाएंगे, आप गुणातीत हो जाएंगे। तो नमस्ते करते हुए राइट हैंड साइड में जितने भी देव हैं जिनको आप मानते हैं उनको नमस्ते करेंगे, हंसते हंसते। किया? अब लेफ्ट साइड में हमारे जीवंत देव हैं। जीवंत देव कौन है? हमारे माता पिता घर पर जीवित हैं तो वो है ना, बच्चे हैं तो वो भी देव हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं वो भी देव हैं, पत्नी तो सबसे बड़ी देवी है ना। तो सोचिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो साइड में, लेफ्ट साइड में पत्नी को, देवी को नमस्ते करते, या जो भी हमारे परिवारिक जन है, मित्र जन है, उन सबको नमस्ते करते हैं हंसते हंसते। कमर को ट्विस्ट करना है ना, ऐसे ही मत करना है ना, और अंदर तक करना, पूरा पेट हिलना चाहिए। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में वाम स्थान पत्नी का, वामांगी का माना जाता है और राइट स्थान देवों का माना जाता है। तो देवताओं को भी नमस्ते कर लिया और घर की देवी को भी नमस्ते कर लिया ना। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली और दुनिया के सारे तीरथ जुटे, पत्नी के तीरथ घरवाली है, घरवाली को नमस्ते कर लिया। अब कौन बच गया? देवों को करना और असुर नाराज हो गए तो Not audible. सर आप ऑडिबल नहीं हो। सर म्यूट हो गए सर। हाँ हो गया। कैसे म्यूट हो गया आपने, इससे पता नहीं। चलिए, तो अभी हम समापन करते हैं, कोविड लाफ्टर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पैकेज लाफिंग का ना 45 मिनट का है, कम से कम 5 मिनट में जितना हो पाया हमने किया। So you are again muted. बार बार Sir, someone muted you. बी कॉशियस। चलिए, तो अभी 5 मिनट तो हमारे उसमें पूरे निकल जाएंगे, 2-3 मिनट ही बचे, तो भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं 3 बार। उसके बाद फिर संकल्प आपको रिपीट करना है। या तो आपकी कोई अथॉरिटी कराएं, या आपके पास संकल्प लिखा हुआ है तो, नहीं तो फिर मैं आपको मेरे बात बोलना है। श्रीराम सर, अगर आपको कराना है, आप लोगों में से किसी को संकल्प, तो वो करा सकते हैं। Yes, sir, please continue. Sir, again you are not audible. Sir, you are again muted. कोई कर
आवाज तो म्यूट कर रहे हैं ना आपके यहाँ से, कोई मुझे बार बार म्यूट कर देता है। अभी अनम्यूटेड, अब आ रही है आवाज? यस सर। चलिए, कोई मिस्टेक से हो रहा होगा मुझे लगता है किसी के साथ। चलिए, तो ये मेरी तरफ से लगभग पूरा हो गया और इसमें संकल्प है। तो अशोक सर आप करवाएंगे क्या? मैं आप लोग रिपीट करेंगे क्योंकि ये संकल्प आज प्रोटोकॉल में करना है। 5 लाइन का है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। तो अशोक सर, श्रीराम सर, संकल्प आप लोग कराएंगे आपस में? हेलो सर, आप करवा दीजिए सर। ओके, मुझे पता लगेगा। बाकी लोग म्यूट रखते हुए अपने स्थान पर इस संकल्प को रिपीट करेंगे। भारत सरकार ने एक संकल्प ये बनाया हुआ है इंटरनेशनल योगा डे पर, ये हमको रिपीट करना है। तो श्रीराम सर मेरे बाद रिपीट करेंगे माइक अनम्यूट करके, सो दैट आई विल आल्सो लिसन। बाकी लोग अपने स्थान पर रिपीट करेंगे। मैं स्वयं को एक स्वस्थ शांति प्रिय आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइएगा। प्रेयर सबको मेरे बाद दोहरानी है। श्रीराम सर मेरे बाद बोलेंगे, बाकी लोग अपने स्थान पर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और ट्रिपल सलूट तरफ से ओवर टू यू हो जाएगा। पहला सलूट करते हैं हम। फोन नहीं तेरे को। सेकंड सलूट हम करते हैं देश के जवानों को, जो सेना की, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनकी वजह से हम हंस पा रहे हैं। और तीसरा सलूट दोनों हाथों से सारे हास्य योगियों के लिए करते हैं। दुनिया में जो भी हंसते हैं, खुद हंसते हैं और दूसरों को हंसाते हैं, क्योंकि जो हंसते हैं उनके लिए ईश्वर प्रार्थना करता है, और जो हंसते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जो हंसाते हैं उनके लिए ईश्वर प्रार्थना करता है। धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद सर, और बाकी आपको जो करना है। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। बिरादर मैडम, डॉक्टर बिरादर मैडम। Yes, sir. I am here. Thank you, sir, for such a wonderful session. We at MIT, we believe that union of science and spirituality alone will bring peace to mankind, and yoga is part of it. Our 240 participants got benefited by your guidance, sir. Thank you very much. On this occasion of International Yoga Day, let us promise that we ourselves will do yoga daily and also inspire others to include yoga in their daily routine. Thank you, Agrawalji sir, once again. So I request participants to mute yourself, please. There are two important notices for all the participants.
first important notice is our MIT World Peace University is going to organize a yoga session by Baba Ramdev ji on 24th June 2021 at 4 p.m. All the participants are requested to take benefit of this session, and the link will be shared with you before session. The second notice is all the participants are requested to fill the feedback cum attendance form. The link is shared in chat box. Note that certificate to all those participants will be issued, those who have filled the feedback form. Thank you. Now we come at the end of this session. I request my team member, Professor Sandeep Dhawale sir, to propose formal vote of thanks. Dhawale sir, Excuse me, over ma'am. to you. Yes. Yes, Vedant. Ma'am, but we can't see the chess board. Ma'am, we can't see the chat box. Okay. It will be shared with you on your group. Okay. Sure, ma'am. Sandeep sir, over Yes, to madam. you. Is I am audible? Yes, sir. You are audible. Okay, thank you. No duty is more urgent than the returning the thanks. Good morning, everyone. I am Professor Sandeep Dhawale from Electronic Science Department and the member of NSS and HDC unit of MIT Art, Commerce and Science College, Anandi Road, Pune. I am here to present the vote of thanks for today's yoga session. It's my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this yoga day successful. I would like to thank our guest, Yogacharya Rajesh Agarwal sir, yoga consultant, for his beautiful session and enlightening with us with their knowledge and experience. Today's session was full of knowledge and helpful. We really enjoyed today's yoga session with Yogacharya. He communicates so well and make you feel very comfortable and active in the session. We know that yoga can help the people to deal with the crises such as depression and anxiety by boosting both physical and mental health. India, along the world, is celebrating the International Yoga Day today, and our Prime Minister Narendra Modi ji addressed the nation on this occasion, where he said that yoga has emerged a ray of hope in fight against the coronavirus diseases, that is COVID-19. And because of that, our college is organized the Yoga Day. I would like to thanks to the project director, Mr. Vijay Khode sir, for their supports. I would also like to thanks our principal sir, Dr. B.B. Wapare sir, giving the permission to organizing this yoga session on the occasion of the International Yoga Day. I would like to thanks Professor Sri Ram Kargaonkar sir, coordinator of NSS, and Professor Bhopade sir, coordinator of HDC, for conducting this session. I am also very much thankful to the Vice Principal, Dr. Mansi Atitkar Madam, and Professor Akshata Kulkarni Madam for their support for the program. I am also thankful for all the HODs for their supports. I want to thanks to the NSS, HDC, and sport unit, including the teaching staff, non-teaching staff, and students of the college who really work hard to make this event successful. Finally, I also want to give my special thanks to all the teaching, non-teaching staff, and the students for actively participated in the yoga session. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sandeep sir. Thank you all for actively participating in this session.
And now, with the kind permission of Principal Sir, I declare that today's program is over. Have a nice day. And everyone, those who can't see the feedback link on the chat box, they will be sent on their class groups. Okay, so don't worry about it. So it will be sent to your class groups. Okay, thank you. So before you leave, once again, I will read out the notice. Participants are requested, please mute yourself. Once again, I repeat the notice. Our MIT World Peace University is organizing a yoga session by Baba Ramdev Ji on 24th June 2021 at 4 p.m. All the participants are requested to take benefit of this session. The link will be shared with you before session. Thank you. Okay, thank you, ma'am. So today's yoga session comes to an end. Thank you very much for joining, and you will get the link on your groups. Okay, thank you. कोणती नोटीस आहे? अच्छा, आजची तुमची सेरा मी तर नाहीच